معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل wazibbook.com میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں زبیر یوسف ندوی آج میں آپ کے سامنے درس قرآن کی 23ویں نشست میں سورہ بقرہ کی چند آیات کا ترجمہ اور مختصر تفصیل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل wazibbook.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اسی طرح ہم درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامری ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ناظرین، ان آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لو یردونکم، کہ وہ تم کو لوٹا دے، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف۔ یعنی اہل کتاب یعنی یہودیوں کے بارے میں اور بنی اسرائیل کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے لوگ، یہ یہودی لوگ، یہ اہل کتاب، یہ عیسائی اور یہودی یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمہیں اسلام لانے کے بعد اور ایمان قبول کر لینے کے بعد اور اللہ کے رسول کو ماننے کے بعد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب قرآن کو تسلیم کر لینے کے بعد یہودی یہ عیسائی چاہتے ہیں کہ یہ تم کو کفر کی طرف لوٹا دیں، یہ تمہیں کفر میں داخل کر لیں، یہ تمہیں کافر بنا دیں۔ یہ لوگ یہ چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی وہ منشا اور ان کی کہ دلوں کے اندر جو چیز ہوتی تھی اس کو بیان کر رہا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر یہ تمنا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں، ایمان لانے کے بعد، تمہارے ایمان قبول کر لینے کے بعد۔ اللہ رب العزت اہل ایمان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہیں کفر کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں، اور اس کی لوٹانے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، کہ حق کے ظاہر ہونے کے باوجود، من بعد ما تبین لهم الحق یعنی حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، اس کے باوجود ان کے دلوں کے اندر حسد ہے، ان کے دلوں کے اندر بغض ہے، ان کے دلوں کے اندر عداوت ہے، ان کے دلوں کے اندر کینہ ہے، کپٹ ہے، وہ مسلمانوں کے تعلق سے ہی جلتے ہیں، اور مسلمانوں سے اور عربوں سے جلتے ہیں، اور ان کی جلن اور حسد کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں آپ کو مبعوث کر دیا گیا۔ یہی اصل وجہ ہے ان کے جلنے کی، ان کے حسد کی، ان کے بغض کی، ان کی کینہ و کپٹ کی، جس کی بنیاد پر یہ مسلمانوں سے حسد رکھتے ہیں اور مسلمانوں سے جلتے ہیں۔ ناظرین، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں میں جو دو شخص تھے، حی ابن اخطب اور ابو یاسر بن اخطب، یہ وہ دو یہودی تھے جو مسلمانوں سے بغض رکھتے تھے اور جو عربوں کو اسلام لانے سے روکتے تھے، اور جو عربوں سے اور مسلمانوں سے جلتے تھے، اور ان کے جلن کی جو وجہ تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عربوں میں بعثت کا ہو جانا ان کے حسد کی وجہ تھی۔ اس بنیاد پر وہ جلتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ لوگ مسلمان نہ ہوں اور اسلام میں داخل نہ ہوں۔ اس کے بعد امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کعب بن اشرف، جس کا کام یہ تھا، جس کا مشغلہ یہ تھا کہ وہ اپنے اشعار کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حجو بیان کرتا تھا، آپ کی برائی بیان کرتا تھا، اور آپ کو غلط طریقے سے وہ بیان کرتا تھا اپنے اشعار کے اندر، آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں وہ بنا کر پیش کرتا تھا۔ تو وہ کعب بن اشرف کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ بہرکیف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان دو یہودیوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اور امام زہری کہتے ہیں کہ کعب بن اشرف جیسے یہودی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ناظرین، ان آیات کے اندر یہودیوں کی جو دلوں کے اندر جو حسد ہے اور جو جلن ہے اس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاعفوا واصفحوا، تم ان سے درگزر کرو، ان کو معاف کرو،
फ़ाफ़ू वस्फ़हू, उनसे दरगुज़र करो, हत्ता यती अल्लाह बिअम्री, यहाँ तक कि अल्लाह का मामला आ जाए, अल्लाह कोई हुक्म नाजिल कर दे। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह तो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, हर चीज़ उसके कब्ज़े कुदरत में है, उसके दायरा इल्म में है, हर चीज़ उसके कंट्रोल में है। वाक़िमुस्सलाह, और मुसलमानों को, सहाबा को, मोमिनों को और क़यामत तक इंसान मुसलमानों को ये हुक्म दिया गया मुसलमानों को कि वाक़िमुस्सलाह, नमाज कायम करो, वातुज़ ज़कात, और ज़कात अदा करो, क्योंकि नमाज और ज़कात उस वक्त ही मुकल्लफ़ होती है जब कोई शख्स इस्लाम में दाखिल हो जाता है। इसलिए मुसलमानों से ही कहा जा रहा है कि वाक़िमुस्सलाह, नमाज कायम करो, वातुज़ ज़कात, और ज़कात अदा करो। वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, और तुम जो भी अमल करते हो और जो भी तुम आगे के लिए जो भी अमल करके जो भलाइयाँ पहुँचाते हो, तुम उसको अल्लाह के पास पाओगे। तजिदूहु इंदल्लाह, तुम अल्लाह के पास उसको पाओगे और वो चीज़ तुम्हें अल्लाह के यहाँ मिल जाएगी। इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, बेशक तुम जो भी काम करते हो, जो भी अमल करते हो, अल्लाह उसको देख रहा है। वक़ालू, और यहूदी लोग, ये ईसाई लोग, ये बनी इसराइल के लोग कहते हैं कि लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हुदन अव नसारा, कि जन्नत में सिर्फ वही दाखिल होगा जो यहूदी होगा या ईसाई होगा। यानी इन लोगों की ये सोच थी और उनका ये गुमान था, और ये उनकी अहमकानापन था, और ये उनकी बेवकूफ़ी थी कि वो ये समझते हैं कि सिर्फ यहूदी और ईसाइयों के लिए जन्नत बनाई गई है, उनके अलावा कोई जन्नत में दाखिल नहीं होगा। वो समझते हैं कि वही हक़ पर है और उनके अलावा कोई हक़ पर नहीं होगा। लेकिन ये उनकी गलतफहमी है, ये उनका अहमकानापन है, ये उनकी बेवकूफ़ी है, ये उनकी नासमझी है। गोया कि एक तरह से वो गफलत में है और बेवकूफ़ी में है और अहमकानापन में है, और वो गलत सोच रखते हैं। उसके बाद वो ये कहते हैं कि इन्नल्लाह वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हुदन अव नसारा तिल्का अमानियुहुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं कि तिल्का अमानियुहुम, ये तो उनकी उम्मीदें हैं, उनकी तमन्नाएं हैं, उनकी आरजुएं हैं। ये वो उनकी आरजुएं, उनकी सोच है जो उन्होंने पाल रखी है, उनकी आरजुएं, उनकी तमन्ना है जो उनके दिलों में पनप रही है। इसके अलावा इसकी कोई हकीकत नहीं है। तिल्का अमानियुहुम, ये तो उनकी उम्मीदें हैं। कुल कह दीजिए, नब्बे सहाबा से खिताब किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब किया गया कि कह दीजिए हाथू बुरहानकुम, कि तुम ले आओ दलील इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम्हारे पास, अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हारे पास अगर कोई दलील है इसकी कि जन्नत सिर्फ तुम्हारे लिए और तुम ही उसमें दाखिल होगे, तो फिर कोई दलील ले आओ। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे कि भला क्यों नहीं मन असलम वजहहू लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन, जो सही तरीके से जिसने इस्लाम को कबूल किया, मुकम्मल तौर पर इस्लाम को एक्सेप्ट किया, या अपने वक्त के नबी को जिसने माना और उसकी शरीयत को माना, और उसके बाद अगर उसने किसी और नबी के दौर को पाया और उस पर भी ईमान ले आया और उसकी लाई किताब पर भी ईमान ले आया, इसी तरीके से अगर वो किसी नबी, दूसरे नबी के आने से पहले अगर उसका इंतकाल हो गया और वो अपने वक्त के नबी को मुकम्मल तौर पर मानता था, जिन चीज़ों का नबी ने करने का, अल्लाह ने उन्हें करने का हुक्म दिया था, उनको सही तरीके से करता था और जिनसे रोका था उनसे बचता था, तो फिर क्यों नहीं भला मन असलमा वजहहू लिल्लाहि, जिसने मुकम्मल तौर पर सही तरीके से इस्लाम को कबूल किया, वह हुआ मुहसिनुन, और वो मुहसिन यानी अच्छे काम भी उसने किए, फलहू अजरुहु इंद रब्बी, तो उसके लिए बेहतरीन बदला है उसके रब के पास। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे शख्स को जो कि अपने वक्त के नबी को माने, उनकी लाई हुई किताबों को तस्लीम करे, और किताबों पर, मलाइका पर और हर चीज़ पर अल्लाह ने जिन चीज़ों पर ईमान लाने का हुक्म दिया है उन पर ईमान ले आए, तो फिर ऐसे शख्स को अल्लाह का बेहतरीन बदला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जन्नत में दाखिल करेगा और बेहतरीन इनामात से उसको नवाजेगा। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और ऐसे लोग जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम करते हैं, आपसे पहले के नबियों को तस्लीम करते हैं, और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन अम्बिया को भेजा उनको मानते हैं और उनकी शरीयत को, उनकी किताबों को, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं और आपकी किताब को भी मानते हैं, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है कि वला खौफुन अलैहिम, उन पर कोई खौफ नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा, वला हुम यहज़नून, वो गमगीन नहीं होंगे, वो परेशान नहीं होंगे, वो टेंशन में नहीं होंगे, उन्हें किसी तरह का कोई टेंशन नहीं होगा, कोई मुसीबत और
परेशानी और बला में मुब्तला नहीं होंगे, बल्कि वला खौफुन अलैहिम, उन पर किसी तरह का कोई डर नहीं होगा, वला हुम यहज़नून, और वो गमगीन नहीं होंगे, बल्कि वो जन्नत में बेहतरीन तरीके से रहेंगे और बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें ऐसी जन्नत के अंदर दाखिल कर देगा जिसमें ऐसे महलात में जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी, और ऐसे बागात अता करेगा, और हर तरह की सहूलत और मैसर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको फराहम करेगा, और ऐसी इनामात से नवाजेगा कि जिसको न किसी दिल ने महसूस किया, न किसी की आँखों ने देखा, और न किसी कानों ने उनको सुना। यानी ऐसी ऐसी इनामात जिनके बारे में इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे ऐसे इनामात से इंसान को नवाजेगा। नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको, हम सब को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, और हम सब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना फरमाबरदार बंदा बनाए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर मुकम्मल तौर पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और जिन चीज़ों से आपने रोका है उनसे बचने की, उनसे परहेज़ करने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, हमारे चैनल वाज़िबुक.com को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें, ताकि इसी तरह हम दर्स कुरान के ताल्लुक़ से वीडियोज़ आपकी खिदमत में पेश करते रहें। नाज़रीन, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करें, पहुँचाएँ, ताकि आप भी सवाब के मुस्तहिक़ हों। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।